نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سگے مدینہ لقب رکھنے والوں کی اصلاح۔ آج کل ایک چیز بڑے زور و شور سے سنائی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے کہ بعض لوگ وہ اپنے آپ کو غیر جنس کی طرف اور اپنے آپ کو انسانیت کی جنس کے علاوہ دوسری جنس کا اپنے لیے انتخاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی جنس کو جو مقام اور ترقی اور عظمت اور شان عطا فرمایا ہے، ہم آج اس پر بات کریں گے اور قرآن مقدس سے اس بات کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو کائنات کی تمام چیزوں سے احسن اور اجمل بنایا ہے۔ اب جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام سے انسان کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت اور عظمت والا بنایا ہے، بڑی عزت اور عظمت سے نوازا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنس انسانی کو بڑی عظمت والا بنایا ہے، لیکن چند لوگ وہ جنس انسانی جو بڑے مقام اور شرف والی ہے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے دوسری جنس کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسے لوگ حقیقت میں اللہ رب العزت کی یہ جو رضامندی ہے، اللہ رب العزت نے جو انتخاب کیا ہے انسان کے لیے عزت اور عظمت کا، اور ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو لوگ اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر رضامند نہیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصاویر ہو تو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اب جو لوگ اپنے آپ کو سگے مدینہ یا کلب علی، کلب عباس یا کلب مدینہ، یعنی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مدینے کے کتے ہیں یا حضرت علی کے کتے ہیں یا حضرت عباس کے کتے ہیں، تو یہ حدیث ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری حدیث ایک مختصر سا اس کے اندر واقعہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے، وحی آنا بند ہو گئی۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے کا سبب پوچھا، تو فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے گھر کے اندر کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس لیے جس گھر کے اندر کتا ہو ہم اس گھر کے اندر نہیں آتے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ وہ مدینے کا اوریجنل کتا ہے، اصل کتا ہے، جب
वो कुत्ता, ओरिजिनल कुत्ता मौजूद हो, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त मौजूद हैं, लेकिन फिर भी फरिश्ते नहीं आ रहे। तो अब ये लोग जहां पर होंगे अपने आप को कुत्ते का इंतखाब करने वाले, तो इनके जगह पर और जो जिस जगह ये यहाँ होंगे वहाँ पर फरिश्ते कैसे आएंगे? तो लिहाजा इनको इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। एक और हदीस के अंदर आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवारा कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया है। अब इस पर जो उलमाए किराम बहस करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफिक हैं कि मूजी कुत्ते को तो कत्ल कर देना चाहिए। कुत्ते की ईज़ा कई तरह की है, जानी ईज़ा है, जानवरों को तकलीफ देना है, लेकिन आजकल जो लोग सगे मदीना, सग या कलब बने हुए हैं, अपने आप का इंतखाब कुत्ते का करते हैं, तो ये लोग भी किसी ईज़ा से कम नहीं हैं। हकीकी कल्ब सग जानों पर हमला करते हैं और ये सग लोगों की जेबों पर हमला करते हैं, ये भी ईज़ा का अपना तरीका अपनाते हैं। तो लिहाजा हमारी इनसे गुजारिश है कि इस हदीस पर ये लोग भी अमल करें। आगे फिर चंद फिकी मसाइल भी आए, वो भी अहादीस से अखज़ हैं कि जिस बर्तन के अंदर कुत्ता मुंह डाल दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 तरह की अहादीस इस बारे में साबित हैं कि उस बर्तन को धोने का क्या तरीका है। तो बाज़ अहादीस के अंदर आया है कि 3 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा, बाज़ के अंदर 7 मरतबा, बाज़ के अंदर 8 मरतबा। बहरहाल ये फ़िकी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन मुतअद्दिद बार उसको धोना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कुत्ते का लुआब कपड़ों पर लग जाए तो इससे कपड़ा नापाक हो जाएगा। फिर एक और बात समझें कि अल्लाह के कुत्ते को तो हम मस्जिद में दाखिल नहीं होने देते। शरीयत ने मना कर दिया है कि जो ये हकीकी कुत्ते हैं ये मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अगर मस्जिद के अंदर इनका किसी जगह लुआब गिर जाए तो उस जगह को पाक करना ज़रूरी है। वो हकीकी कुत्ते हैं जो ये लोग अपने आप को कल्ब और सग यानी कुत्ता कहते हैं होने के दावेदार हैं। तो ये लोग तो हर वक्त मस्जिद में पड़े रहते हैं, हर वक्त मस्जिद में रहते हैं। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी इस्लाह करें और ऐसे अलकाबात के रखने और बुलाए जाने से परहेज करें। ये चाहे कि खुद वीडियो क्लिप बनवाकर खुद मजमे के सामने अपने आप को अजमत वाला ये बताना कि हम मदीने के कुत्ते हैं, हम फलां जगह के कुत्ते हैं। तो हमारा इनसे सवाल ये है कि क्या माअज़ल्लाह जो आप अपने आप को इश्क का दावेदार कहकर, इश्क का दावेदार समझकर अपने आप को मदीने का कुत्ता कह रहे हैं, तो लिहाजा हमें ये बताएं कि आप बड़े आशिक हैं या सिद्दीक अकबर बड़ा आशिक था, फारूक आजम बड़ा आशिक था, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बड़े आशिक थे या तुम बड़े आशिक हो। तो इसलिए ये तुम्हारा इश्क कोई हकीकी इश्क नहीं है सिवाय धोखा के। अगर हकीकी इश्क होता तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के रास्ते से तुम ना हटते। तो लिहाजा किसी सहाबी ने अलियाज़ु बिल्लाह ये लक़ब अपना सग या कल्ब वाला नहीं रखा, ना किसी ताबी ने रखा, ना किसी तबा ताबीन में से किसी ने रखा, ना किसी इमाम ने रखा। चारों इमाम हैं उनमें से किसी ने भी नहीं रखा, ना अइम्मा हनफिया में से किसी ने रखा। तो आगे बात यह है कि जो लोग अपने आप को कुत्ता कहलवाना चाहते हैं, कुत्ते का इंतखाब करना चाहते हैं, तो उन लोगों से हमारी गुजारिश है फिर हज करना भी छोड़ दें, फिर रोजे रखना भी छोड़ दें, नमाज पढ़ना भी छोड़ दें। कुत्ते पर कोई नमाज फर्ज नहीं है, कुत्ते पर हज फर्ज नहीं है, कुत्ते पर रोजा फर्ज नहीं है, कुत्ते पर ज़कात फर्ज नहीं है, कुत्ते पर जितने भी इस्लामी अहकामात है कोई फर्ज नहीं है। तो लिहाजा इनको भी छोड़ दो। जब आपने अपने आप को कुत्ते का इंतखाब करना है तो सारे जो कुछ अलकाबात अपने लिए इंतखाब किया है तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। जो शरीयत के अंदर कुत्ते के बारे में जो कुछ भी वारिद हुआ है कि कुत्ता नजस है, पलीद है, नापाक है, कुत्ते से बचना चाहिए, तो उस पर भी अमल करना ज़रूरी है। आखिर में मैं यही दरख्वास्त करूँगा और उम्मीद भी रखता हूँ कि मेरे तमाम अहबाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आखिर में आपसे चाहूँगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।